Assalamualaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture, we study about the layers of atmosphere. In this lecture, we will study about the lithosphere, hydrosphere and biosphere. So, number one, lithosphere. Lithosphere is the solid inorganic portion of the earth. Its outer upper part of the earth is consists of crust and the upper mantle. The thickness of lithosphere varies between the 65 to 100 kilometers and lies above the layer known as asthenosphere, which is composed of less rigid rocky material. So lithosphere क्या है? सबसे अपर पार्ट ऑफ द लेयर है वो लिथोस्फीयर है. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में अर्थ की फिजिकल स्टेट पढ़ी थी जिसमें हमें बताया था कि क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ आवर अर्थ. सो जो लिथोस्फीयर है विच इज़ द मोस्ट अपर पार्ट ऑफ द लेयर, और इसमें कौन सी लेयर्स मौजूद है? क्रस्ट एंड अपर मैंटल. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. The earth consists of three layers: crust, mantle and core. अर्थ का जो अगर हम इंटीरियर की बात करें तो तीन लेयर्स होती हैं हमारी अर्थ में. Crust is the outermost layer of the earth, and just like a thin solid skin, crust is mainly a granite and basalt. Crust is a part of earth where we walk and live and even the cultivated crops. Crust क्या है? upper most, इतनी मोस्ट कि हम ये कह सकते हैं कि जिस ज़मीन पे हम चल रहे हैं दैट इज़ द क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ. ठीक है, ये थिन है, सॉलिड है और एक तरीके से स्किन की अपीयरेंस दे रही होती है. जस्ट लाइक हमारी बॉडी में सबसे अपर पार्ट जो हमारा स्किन है वो हमारी क्रस्ट है. सेम एज हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है जहाँ जिसमें हम रह रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मैंटल. बिलो द क्रस्ट इज अ लेयर कॉल्ड मैंटल. इट्स द आउटर लेयर. इट्स मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक कॉल्ड द मैग्मा. It is the largest, occupy 83% of the earth's volume, total volume, and peridotite. It is a major mineral. सो मैंटल क्या है? आफ्टर क्रस्ट हमारे पास जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं मैंटल, जो कि यूजुअली रॉकी है. मोल्टन रॉक्स की बात हम क्यों कह रहे हैं और मोल्टन रॉक्स को हम मैग्मा कहते हैं क्योंकि इनसाइड है, मतलब सारी हॉटनेस जो है वो मेंटल की तरफ होगी. देन कोर. इट इज़ द सेंट्रल जोन ऑफ द अर्थ एंड इट्स अ हार्ड जोन ऑफ द सॉलिड. द टेम्परेचर इज इन द कोर मे बी द रेंज ऑफ 2200 centigrade till 2750 centigrade. Core is the mass of iron and nickel under the great pressure. Then mental के बाद जो inner proportion आता है core. Core further two divides है, inner core and outer core. ये सबसे ज़्यादा hard और solid है. ठीक है, इसकी range सबसे ज़्यादा है just because ये inner part है और ये two में भी divided है. ठीक है. Next we so let's look the picture. दिस इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. हमने बात करी कि मैंटल के ऊपर जो लेयर है वो एस्थेनोस्फीयर जो कि रिजिड रॉक्स की है जिसको हम लिथोस्फीयर का पार्ट भी कहते हैं. देन वी हैव अ मैंटल, then outer core and inner core, and this is the crust where we live, where we crops grow, where we walk. This is known as the crust. Now see in this, the inner portion is core, then mantle, and then we have the crust. Now theory of plate tectonics. This theory explains that the lithosphere consists of several large and small tectonic plates that move against one another. These plates are just like a piece of jigsaw puzzles forming the fragments of lithosphere. These plates move by the movement of magma underneath. Earthquake and volcano eruption take place at the plate boundary where two plates are slowly coiling or rubbing against each other. So we have another theory, the theory of plate tectonics. As you see in the picture, यहाँ पे आपको different colors के जो है वो puzzles दिख रहे होंगे. हम इसको indicate करेंगे what the puzzles. So basically plate tectonics is a theory. Small and a big large pieces of land जो है वो हमने divide कर दिए. ठीक है, continents भी कह सकते हैं. पहले जो है क्या इसको हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में. अब ये क्या है? डिफरेंट पीसेस हैं हमारी अर्थ के, डिफरेंट एरियाज हैं. अगर ज़मीन के अंदर किसी भी तरह किस्म की डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन होती है तो ये प्लेट्स आपस में कोलाइड हो जाती हैं या फिर रबिंग करती हैं. कोलाइडिंग और रबिंग की वजह से ही क्या होता है? अर्थक्वेक होता है और जो है वॉल्केनिक की इरप्शन होती है. ये फ्रेगमेंट्स जो है हमारी लिथोस्फीयर यानी कि हमारे क्रस्ट के ऊपर जब भी कोलाइडिंग या रबिंग का प्रोसेस देती है, कोई भी लेयर्स आपस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लाइडली पैक्ड है, तो कोई भी लेयर्स आपस में जब रबिंग या कोलाइडिंग का प्रोसेस देगी तो फिर क्या कॉज होता है? अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन. तो दिस इज अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कि जब बहुत सारी जो है प्लेट्स आपस में
टाइटली पैक्ड है और उनके कोलाइडिंग और रबिंग के लिए उन्हें कोई जगह चाहिए, तो वो एक दूसरे को पुश और पुल करेंगे, और जब वो पुश और पुल करेंगे तो इसके केस में क्या होगा, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन. Now, next we have hydrosphere. Hydro means water. A hydrosphere is the total amount of water on a planet. The hydrosphere includes the water that is on the surface of the planet undergoing into the air. The planet's hydrosphere can be liquid, vapor, or ice. On the Earth, liquid water exists on the surface in the form of ocean, lakes, and rivers. Earth is preserved in a huge ocean, which is from 97% of the water on the earth. There are 5 oceans. So students, hydro means water, तो we can say that हमारे अर्थ में जितना भी वाटर मौजूद है उसको हम कहेंगे हमारा हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो. टोटल 97% हमारा अर्थ का वाटर कहाँ से आता है, अटलांटिक ओशन, Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. We have 5 oceans, so 97% जो है water जो है यहीं से आता है. Now it is fact that all present the earth is not drinkable, only fresh water is drinkable, which is come from the glaciers. Now एक और चीज़ का भी fact है कि टोटल अमाउंट का 97% वाटर अगर मौजूद है तो वो टोटल वाटर पीने के काबिल नहीं है. सिर्फ और सिर्फ वो पानी पीने के काबिल है जो कि ग्लेशियर से मेल्ट होके आया है. सिर्फ और सिर्फ वही फ्रेश वाटर है और उसी को हम पी सकते हैं. नाउ हाइड्रोस्फीयर की तरफ से हमारे पास एक आती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. Circulation and conservation of earth's water in it circulates from the land to the sky and back again is called as hydrocycle. बचपन में सुना होगा वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होती है, पानी का एवापोरेट होना, कंडेंस होना, रेनफॉल होना, अगेन एवापोरेट होना, कंडेंस होना, रेनफॉल होना, थ्रू वॉट के ज़मीन से पानी का उठना, स्काई में जाना, दोबारा ज़मीन में आना. दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिक साइकिल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट डिटेल कि इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. व्हाट आर दीज स्टेप्स, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ. Now, evaporation. Water is transferred from the surface to the atmosphere through the evaporation. It is a process by which water changes from the liquid to gaseous stage. The suns provide energy to evaporate the water from the earth's surface. आप लोग एक सॉसपैन ले, उसमें पानी डालें और उसे बॉईल करने लग दें, और बॉईल करते एट द एंड वो पानी उस सॉसपैन में से ख़त्म हो जाएगा. तो क्या हुआ, हमने हीट प्रोवाइड करी, वाटर एवापोरेट होके उड़ गया, एवापोरेट हो गया, चला गया. सेम एज हमारे अर्थ में मौजूद सन एनर्जी की वजह से जो वाटर एवापोरेट होता है उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन. सबसे पहले तो हो गया हमारे पास वाटर एवापोरेट होगा. देन वी हैव अ कंडेंसेशन. इन दिस प्रोसेस ऑफ वाटर एवापोरेट कंडेंस इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म क्लाउड्स. कंडेंसेशन अकर व्हेन द टेम्परेचर चेंज. कंडेंस टू फॉर्म कूल क्लाउड्स. इज प्रोसेस नोटिसेबल ऑन प्लांट्स व्हेन द ड्यू ऑन देम इन द मॉर्निंग. कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या हुआ कि हमारा जो वाटर एवापोरेट हुआ वो ऊपर स्काई पे जाके क्लाउड्स बन गए. अब ये जो ड्यू आप देखते हैं सुबह के टाइम पे प्लांट्स के ऊपर, ये क्या होती है, हमारे सराउंडिंग में मौजूद एवापोरेटेड वाटर जो कि क्लाउड्स नहीं बनते, वो जो कि सम अमाउंट ऑफ क्लाउड्स नहीं बनते तो वो ड्यू की फॉर्म में जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं. देन वी हैव अ प्रेसिपिटेशन. द मैकेनिज्म थ्रू विच वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन कहते हैं, सिंपल इज दैट, बारिश, स्नो फॉलिंग, ड्यू, हेल, फॉग, ये वो तमाम चीज़ें जो आसमान से फॉल डाउन करती हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो ड्यू हो, चाहे वो फॉग हो, हेल हो, each and everything which falls from the sky is known as precipitation. Then we have infiltration. Infiltration occurs when the precipitation seep into the ground, permeable rock, the rock that soak into it, the main source it from the river, lakes and grounds. Then प्रेसिपिटेशन हो गई, बारिश हो गई. अब वो पानी जो है वो गैदर होगा एक जगह, वहाँ वो पानी हर जगह गिरा है, वो पानी जो है वो रॉक्स पे भी गया है, ग्राउंड पे भी गया है, लेक्स, रिवर, वो सारा पानी जो है फ्लो होता है वो लेक्स और रिवर्स में आ जाएगा. देन रन ऑफ. In precipitation occurs faster than time required for the water to seep into the ground. The water becomes runoff. This water remains on the surface and the flow into streams. River eventually reaches large water body like a sea and ocean. From sea, ocean gets evaporated. Thus the cycle continue.
रिमेन कंटिन्यू। अच्छा, अब क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, वाटर सोक हुआ, फिल्टर्ड हुआ, कहाँ चला गया, एट दी एंड वो पहुंचता कहाँ पे, सी में, और सी की वजह, सी में पहुंचने के बाद वो पानी दोबारा से एवाप्यूरेट होगा, कंडेंस होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, फिल्ट्रेशन होगी एंड रन ऑफ होगी। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये सी है, यहाँ से पानी क्या हुआ, सनलाइट की वजह से पानी एवाप्यूरेट हुआ, ठीक है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, क्लाउड्स बने, ठीक है, क्लाउड्स बने, या फिर बल्कि यहाँ से, हम यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, पानी यहाँ से जो है एवाप्यूरेट हुआ, कंडेंस हुआ, देन ये बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में इनफिल्टर्ड, दोबारा जो है यहाँ पे सी में आ गया, देन एवाप्यूरेट हुआ, कंडेंसेशन में क्लाउड्स बने, प्रेसिपिटेशन, देन ड्रॉप डाउन, देन अगेन ये रन ऑफ का प्रोसेस, ठीक है। This cycle is known as hydrological cycle, and we can say that water cycle also. Now the last sphere, the biosphere. The biosphere is defined as the area of the planet where organisms live, including the ground and the air. An example of biosphere is where life occurs on above and below the surface of the earth. So biosphere, bio means life and sphere means area. तो बायोस्फीयर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या फिर वो एरिया जहाँ पे जो है ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायोस्फीयर, ठीक है। अब ये बायोस्फीयर जो अबव द अर्थ भी हो सकती है और बिलो, मतलब कि वाटर के अंदर भी हो सकता है और वाटर की सरफेस यानी लैंडी एरिया के ऊपर भी जो है अर्थ की वो बायोस्फीयर जो है पाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फीयर्स ऑफ अर्थ। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।